जो है उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल्स जो है, जैसे कि हम उसे एक हेडिंग के तरह यूज करना चाहते हैं या एक नॉर्मल रिटन अप टेक्स्ट के जैसे यूज करना चाहते हैं, या उसका थीम अलग हो, ठीक है, तो वो भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें बुलेट्स देना है तो बुलेट्स हम चेंज कर सकते हैं, टेबल्स बनाना है तो हम टेबल्स बना सकते हैं। नाउ यू कैन हैव अ लुक हाउ वी कैन मेक ऑल दीज, ठीक है। से आई एम राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन दिस, ठीक है। सो इग्नू, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यस, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आई एम टाइपिंग, ठीक है। नाउ I want to change the format of this. So this, the font size here is 11. I want this to be a bigger size. So what we can do is we can either manually change the size of this text, or we can just click here. There are two A's up there on top. So the second A, which is smaller in size, helps you to decrease the font size, and the capital A, which is on the front part, is meant to increase the font size, ठीक है। So if you want to do it manually, use this, or if you want to do it digitally, you can use this. Now what kind of a alignment do you want to keep this? Say national Indira Gandhi National University should be placed at the center, so you just click on the center part of the alignment section, and you will give the center alignment. All right, if you want it to be on the right side, you are giving it here. If you want it to be on the left side, you are keeping on the left alignment. If you want it to on the center part, you will have to keep it in the center alignment. Okay, now here you have another thing which you should know: how to copy the selected text that you have. I do you have any idea about it? आप कैसे copy करते हो? Say I want to get something from other place, and I want, instead of typing, I want to put the words here. All right, so let me say I want to copy the words from somewhere. So what you will do is you will select the words there, all right, and use the command Control C. Please write down Control C. Control C stands for copy, and Control V stands for paste. All right, let me just find something. Say I want to copy this entire matter. Say I want to copy this entire matter from PowerPoint and copy this. That means Control C. Control C is
standing for copy. Control A, if you select one word and you want to select the entire word there, you use the command Control A. Okay, and if you want to paste it, you use the command Control plus V. कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल, और कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी. तो नाउ व्हेन you have already started, you have already created a document in the Word file. Now you are entering, you are developing the contents in this. So now what you can do is, क्योंकि आपने यहाँ पहले से जो फॉर्मेट यूज किया था, the same format has been followed here. Okay, but if you want to keep it different, you want only the words to be there, so you have paste options also. आप इसमें डेस्टिनेशन थीम जो है उसके हिसाब से आप पेस्ट करना चाहो तो यू कैन यूज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज कीप द सोर्स ऑफ फॉर्मेटिंग व्हिच वाज देयर इन द अर्लियर प्लेस, जहां से आपने इसको यहाँ लाया वो में आप अगर लाना चाहते हो तो आप उसको कीप द सेम फॉर्मेट करोगे. और अगर आपको केवल टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर फिर से उसी तरीके से टेक्स्ट केवल कीप टेक्स्ट ओनली करके रखोगे. ठीक है, अगर आपको उसको डॉक्यूमेंट पिक्चर के फॉर्मेट में करना है तो आप उस तरीके से पिक्चर के हिसाब से रखोगे. इसे एज अ पिक्चर बना के यहाँ रख दिया. ठीक है, अभी ये एज अ पिक्चर सेव हो गया. बट नाउ यू डू नॉट वांट दिस, यू वांट टू अनडू दिस. तो क्या करोगे? कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड इज यूज्ड टू अनडू एनी प्रोग्राम. ठीक है, so please note down all these terms so that you remember it later on. Now you have copied it from somewhere or you have typed it. Now you want to change the font size. आप उसमें font change कर सकते हो. आपको इसका फॉन्ट साइजेस चेंज करना है तो क्या करना है? You will use this. Yes, आप छोटा कर रहे हो उसे. एंड आप ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो. द फॉन्ट स्टाइल विच हैज बीन यूज्ड इज कैलिबरी. बट नहीं, आपको कैलिबरी नहीं यूज करना है, आपको से बडोनी करना है, आपको एंटिक्वा करना है. आपको आपके थीम के हिसाब से आपको जो फॉन्ट रखना है आप उसी फॉन्ट को इसमें डाल सकते हो. ठीक है, I hope I have been able to make you understand till this. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes. Now when yes, so as I was speaking कि आपका इसमें pre-conceived formats भी होता है. If you want this to be, you know, based on the earlier default, by default जो भी format है उसके जैसे आप बनाना चाहते हो तो you have so many formats here. आप उसको directly use कर सकते हो. ठीक है, now I want to change the color of the headings. So here you have the color schemes. यहाँ पर आपके पास different colors हैं. आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स रेंज है जो आपने कल पढ़ा था. यस, यू हैव प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर्स. ठीक है, आपके पास वो कलर्स है. बट इफ यू वांट टू गो विद अ gradients of colors you can pick from here. ठीक है, say you want to go for this, say you want to go for this, or you want to go for this. आप यहाँ से स्टैंडर्डाइज कलर ले सकते हो. या कल हम आपको बता रहे थे आरजीबी वैल्यू होता है. आप रेड को कितना चाहते हो, ग्रीन को कितना चाहते हो, ठीक है, ब्लू को कितना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें अपना कलर्स भी डेवलप कर सकते हो एंड देन यू कैन make it. तो आप देखो, this is the color which was not there in the palette but you have made it yourself and then you have used it. Now there are gradient versions also. What type of a gradient you want, so you can
do that. तो ये बेसिकली हम लोग फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं. कलरिंग जो ऑप्शन होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स का होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कलर्स ऑप्शन. नाउ से आई वांट टू हाईलाइट दिस. मुझे ये जो है ये हाईलाइट करना है. हाउ डू आई डू इट? आइदर आई कैन यूज बोल्ड टू हाईलाइट दैट. देखो अभी हमने बोल्ड किया तो दिस इज द आइकन, जहां आप प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा. या फिर यू कैन यूज द शॉर्टकट की विच इज Ctrl+B. ठीक है, सो बोल्ड कर सकते हो आप. एंड यू कैन हाईलाइट दिस बाय एडिंग अ हाईलाइट कलर विच इज अवेलेबल हियर. टेक्स्ट हाईलाइट कलर. ठीक है. Now, if you want this to be in a different format, okay, if you want to add a effect to it, तो आप उसमें इफेक्ट भी डाल सकते हो इस तरीके से कि उसमें आपको एक उसका जो शैडो होगा वो विजिबल होगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द टेक्स्ट. आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो. आप चाहो तो उसमें कलर्स डाल सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसको लाइट कर सकते हो. ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन विथ योर टेक्स्ट. नाउ व्हेन यू वांट these to be formatted in terms of your alignment, तो आपको हमने बताया था. आप देखो सेंटर अलाइनमेंट में ये रखा हमने. एंड आई वांट दिस पैराग्राफ टू बी नेम्ड नॉट ऑन द बुलेट पॉइंट्स बट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. तो आप इस पे क्लिक करोगे, सेंट्रली आपको ऊपर देखो नंबरिंग है, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट, और यहाँ है क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, और यहाँ आपका है मल्टी लेवल लिस्ट. मल्टी लेवल लिस्ट में आप कैसे करना चाहते हो? यहाँ जैसे ये आपका पहला एक 1 होगा और बाकी बुलेट्स में होगा. सेकंड में होगा 1 होगा, उसके बाद ए होगा, और देखो 1 है, उसके बाद 1 है, और फिर ये चेंजेस है. ठीक है. तो आप अगर इसको चाहते हो तो आप इसे मल्टी लेयर लिस्ट में डेवलप कर सकते हो इस तरीके से. ठीक है. तब आपको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा और कीप इट नन. तब जब आप ये करोगे तब ये उसी तरीके से आएगा. ठीक है. Now here you have the spacing. I hope all of you can see. आप डिक्रीज कर रहे हो इंडेंट को या आप इंक्रीज कर रहे हो इंडेंट को. ठीक है. आप इंडेंट को किस तरफ लेना चाहते हो वो सारा कुछ ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होता है. नाउ within 2 hours explaining everything becomes difficult. So what you need to do is you will have to practice all these in a software so that it becomes easier for you to understand. ठीक है. Now say I want to insert something within this. I want to insert the styles and themes, or I want to insert a table. तो थर्ड आपका जो आइकन आता है on top, that says you can insert a table, you can insert pictures, you can insert online, you can create, or you can create your flow charts, you can make smart art, or you can even make charts. Okay, or you can take a screenshot. ठीक है. स्क्रीन, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. तो आप टेबल बनाना चाहते हो से. ठीक है. तो टेबल में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका टेबल फॉर्मेशन का आएगा एक ऑप्शन. नाउ यू वांट रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आप देखो वहां पर आपने जितना बनाया है आपका उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स ये डेवलप हुआ है. से आई वांट टू मेक इट बिगर, तो हम जितना बनाएंगे 10 कॉलम्स बनाएंगे, 8 कॉलम्स बनाएंगे, अकॉर्डिंगली
वहां उस तरीके से ओपन कर पाएंगे। ठीक है, दिखा सबको आपको? यस। नाउ हियर Yes, ma'am. ऑल्सो यू हैव द ऑप्शन कि आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, से यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, तो आप इंसर्ट में जाओगे, टेबल्स में जाओगे एंड आप यहाँ कितना चाहते हो उतना आप बनाओगे। यहाँ क्योंकि हमने बुलेट्स दिया है इसीलिए ये बुलेट्स का आ रहा है। नाउ आई विल रिमूव दिस। ठीक है, नाउ इफ आई वांट, आपने काम किया यहाँ टेबल में, नाउ यू वांट टू इंक्रीज वन मोर योर सेल ऑन द राइट साइड, फिर आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। वैसे ही आप लेफ्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो, आप राइट में कर सकते हो, आप इसमें रोज बढ़ा सकते हो। सो व्हेन यू डू अ राइट क्लिक टू दिस यू विल गेट द ऑप्शन, आप इसमें क्या कर सकते हो। एंड ऐसे हुआ कि आपको इसमें मर्ज भी करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, से इतना सारा कॉलम्स को सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक किया एंड इसको मर्ज सेल्स कर दिया, तो आपको ये सारा एक साथ मर्ज हो गया। तो देयर आर मल्टीपल वेज जैसे कि आप इसमें हैंडल कर सकते हो। यस, हाउ मेनी ऑफ यू यूज अ सिस्टम? डू यू हैव अ सिस्टम बैक एट होम? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू, नाउ ये आपने मर्ज कर दिया तो इट इज नॉट not reversible, you can say it is a reversible process। आप इसको चाहते हो कि हम जो पहले किए मेरा अनमर्ज्ड था वैसा ही रहे, तो आप इस पे फिर से सबसे इजी वे तो होता है आप उसको बैक जाकर कंट्रोल जेड कर दो। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दोगे मतलब जो भी आपने काम किया था वो वन स्टेप बैक चला जाएगा, अनडू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया टेबल्स में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, yes. Yes. Now, second thing is if I want to insert pictures. Okay, say I have to insert a picture from the system itself. Okay, so I am taking image which is there back at in my system and I want to paste it in this document. ठीक है, तो मुझे ये आउट ऑफ दीज मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है और मुझे उससे इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, तो आई विल जस्ट इंसर्ट इट हियर। ठीक है, यहाँ आपका साइज का क्लैरिटी के बारे में देखते हैं एंड हम लोग उसे साइज को रिड्यूस या एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, से आई वांट कि मेरा जो ये पिक्चर है इसके साइड में ही हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स है वो आए, तो हमें फिर लेआउट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेआउट में हमें उसे रैप करना पड़ेगा। से आई एम सेइंग दिस, तो टेक्स्ट रैपिंग होता है, मतलब टेक्स्ट और इमेज आपका एक साथ एक अलाइनमेंट में आएगा। ठीक है, व्हेन यू डू दिस देन यू कैन गेट द इमेजेस ऑन द राइट साइड। नाउ दिस इज कॉल्ड wrapping.
इसका भी फॉर्मेट्स होता है, आप किस तरह से रैप कर रहे हो इसे, ठीक है। मैम आपका देयर आर नेटवर्क डिफरेंट का फॉर्मेट्स इशू है अगेन। थोड़ा। हाँ, रैपिंग के लिए आप इसको आई एम यूजिंग अ लैन, आई डोंट नो मेरा नेटवर्क का इशू है या नहीं, ठीक है। यस, आवाज कट रहा है मैम बहुत ज्यादा। हेलो, should I go for a Wi-Fi then? Am I audible now? Yes, Yes, ma'am, ma'am. you're audible now. Is it better? Yes, ma'am. Right Yeah, now all it is, right. ma'am. So this is how, we have a text wrapping. So here we have different formats. Okay. So you can either go through the wraps, you can go tight into the wraps, or you can have a square wrap, you can have a top and bottom wrap. When you use a top and bottom, only top and bottom will be used. Okay. If you want it to be within this, तो आपका ये रैप सिस्टम यूज होगा। जब आपको चाहिए कि वो थ्रू हो, एक दूसरे के ट्रांसपेरेंट हो, तो फिर उससे थ्रू होगा। बट सी, ऑल दीज थिंग्स हैव कम, ठीक है। नाउ देयर आर प्लेसेस जहां आपको फॉन्ट्स को द इमेज बिकम्स ट्रांसपेरेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन विच यू कैन रैप दिस, ठीक है। नाउ you have to, this is the layout option for text wrapping. Now there's one more thing that can be done here. What can it be done? You can take images online, you can click images from, you can take images from online sources, and then also you can put it here. So आप online pictures search करोगे, you will pull it from there and then you will paste it here. Say you want this image to be inserted, ठीक है। तो एरोप्लेन्स में आप इसे डालना चाहते हो, it will download it by its own and then put it here. So here also you can wrap it. Okay, you want it in the square, you want it top and bottom, you want it through, or you want it tight, in line with the text. So these are the options which you have, and this is how you can do it. So here this is basically used for editing. So you can see कि आपका बैकग्राउंड में वो फैब्रिक है, एंड उसके ऊपर दैट दिस बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड ओनली एरोप्लेन रिमेन्स, एंड आपका यहाँ पर आपने उसे पेस्ट किया, ठीक है। So with this you can insert the online image. Now along with this you can also insert the shapes, as in you have these different shapes which are available. Say you want to make a flow chart. So flow chart में क्या होता है? You have rectangles. Yes, you can have arrows. आप यहाँ से यहाँ arrow लाएं, एंड अगर आप दोबारा से इसे कॉपी करना चाहते हो, यू कैन यूज द कमांड कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी इज डुप्लीकेट, सो यू हैव ब्रॉट इन अनदर rectangle and you have made this, ठीक है। So in this way you can insert different shapes here. Say you want to duplicate this D, so you are bringing here. You want to get one more shape. Say you want to get a triangle here, so you can
get this shape. ठीक है? Accordingly, you can insert the shapes which are available here and you can develop your own compositions. All right. Now, this is how you use the shapes. But there is a smart art as well. Instead of making this flowchart, you want to have the flowchart which is already available in the page. So for that, what you need to do is you can pick up the inbuilt formats and you can use. So these are some of the inbuilt formats which has basic block list. You can find list in that way. You can find the process, you can find the cycle. Yes, say you want to use this, तो आपने उसे here I am inserting a smart art. Now this colors can also be worked out. ठीक है? Say you want a different color screen in this, तो आप उसे according to the color आप उसे change कर सकते हो. ठीक है? यहाँ आपका color schemes भी है. You want to change the color here, so you can do it according to this. Repeated, Control D again. And आप उसे copy और paste कर सकते हो. Say you want to copy this, तो आपको वो दोबारा हो जाएगा. ठीक है? Now when you are creating all these works, insert के बाद आप इस पे खुद से डिजाइन कर सकते हो. ठीक है? Now in the designing part, what you can do is you can use different colors, you can use different fonts, you can also keep a watermark and then accordingly play with your content. ठीक है? These are basically for the designing part. Now when you format it, say you are doing it for the formatting purpose, आप इसमें कितना स्पेस होना चाहिए वो आप खुद से डिसाइड करके दे सकते हो. आपको राइट इंडेंट चाहिए, लेफ्ट इंडेंट चाहिए. अभी स्पेसिंग जो है वो 0 है. से आई वांट दिस टू बी 2. ठीक है? तो मेरा चेंजेस आ जाएगा. ठीक है? इंडेंट में 0 चाहिए तब होगा. एंड लेफ्ट में हमें नहीं चाहिए, राइट में चाहिए, तो वी कैन चेंज दी वैल्यूज. से आई वांट इट ऑन दी राइट, तो मुझे कितना स्पेस चाहिए वो अकॉर्डिंगली हम करते हैं उसका स्पेसिंग. ठीक है? So this is how we do the spacing. And then we review it, and finally what you want this to be printed. तो लेकिन हाँ, इन सबके साथ what you have to do is you have to keep on clicking this floppy, अदरवाइज ये सारा सेव नहीं होगा. आपको सेव करने के लिए बीच बीच में बस इस फ्लॉपी को प्रेस करते रहना होगा. और यू कैन यूज दी शॉर्टकट की कॉल्ड कंट्रोल एस. कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव. ठीक है? तो आप ये सारा कर लोगे और उसके बाद आपको इसे देखना है कि ये प्रिंट होने से कैसे होगा. नाउ सेव का भी बहुत सारे ऑप्शंस होता है, बट प्रिंट करने के लिए आप अगर चाहते हो कि इसका लेआउट कैसे होना है,
तो what you can do is you can see the preview of it, कैसे वो होगा. तो आप देखोगे इसका लेआउट इस तरीके से होगा. पेज में इस तरीके का आपका प्रिंट आउट होगा. से यू डू नॉट वांट दिस, यू हैव टू अगेन गो बैक एंड रीवर्क. नाउ इफ यू वांट टू सेव इट इन अ वर्ड फॉर्मेट, आपको आप यहाँ आओ, सेव में सेव एज में आप फॉर्मेट्स भी चेंजेस कर सकते हो. से माई कंप्यूटर डेस्कटॉप, मुझे ये किस फॉर्मेट में चाहिए, एज अ डॉक्यूमेंट जो कि एडिटेबल है, बाद में मुझे फिर से एडिट करना है, तो आई विल सेव इट एज वर्ड डॉक. ठीक है, .docx फॉर्मेट में. बट इफ आई वांट इट टू बी सेंट समवेयर एल्स, पीडीएफ में सेव करना है ताकि इसको कोई टैम्पर ना कर सके. ठीक है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा. नाउ व्हेन यू आर सेविंग दिस इन पीडीएफ फॉर्मेट, यू विल सी कि इसको और कोई कुछ नहीं कर सकता है. इसको कॉपी तो कुछ कुछ में होता है, बट इसको और कोई एडिट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस बिकम्स योर परमानेंट थिंग. अदरवाइज अगर आप सॉफ्ट कॉपी कहीं डालोगे तो वो आपका एडिटेबल वर्जन में होगा, तो पीपल में एडिट इट, टेम्पर द उसका टेक्स्ट एंड राइट डाउन एनीथिंग. But when we save it in a PDF format, it is printer, user friendly, it for the printers. तो आप उसी तरीके से उसे सेव कर सकते हो. नाउ अदर देन पीडीएफ आप इसे अलग अलग फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हो. सो देयर आर मेनी फॉर्मेट्स दैट कैन बी सेव्ड. सो यू हैव सेव एज ऑप्शन में डेस्कटॉप, एंड देन ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में फिर से चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स में आप इसे सेव कर सकते हो. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक. Yes, ma'am. All right, so in a nutshell, when we look at it, let me just summarize it. Okay, you can create document and do the formatting there. So you can find the templates from there, and you can create your own templates as well. You can utilize the graphic, you can input graphics from different files and develop your own work art. You can do the text wrapping, you can do the screenshot capture, वर्ड आर्ट कर सकते हो. ठीक है, पेज लेआउट्स पे काम कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो, क्लिक, you can do, or these days we have Google शीट्स, गूगल डॉक्स, तो इसमें आप कोलैबोरेट करके एक साथ मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हो. ठीक है, एंड दोज आर बेसिकली डन इन दी क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन. ठीक है, रिव्यू और प्रूफिंग कर सकते हो, एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हो. यू कैन पुट इन, यू कैन एक्सपोर्ट, यू कैन ब्रिंग इन, यू कैन ओपन, यू कैन एडिट, पासवर्ड प्रोटेक्शंस वगैरह भी इसमें दे सकते हो, वाटरमार्क्स डाल सकते हो. ठीक है, now when you lead into accessibility features mein you can you can speak out. There are systems where you can speak out and they will type it, so it is text to speech functionally. Yes, and you have alternative text for images also, integration with Microsoft Office, cloud integration. Now we'll take just a small break, bio break for 5 minutes. Yes, and we will be starting with the PowerPoint. So it's 4:57, 5 o'clock, 5 we will be back and we'll start with the PowerPoint. All of you please note down all the features that I have given for your Word, Microsoft Word. Yes.
Now, next is the PowerPoint software. Any idea about what a PowerPoint software is for Microsoft? In PowerPoint, we use PowerPoint for presentation making. Yes. Any other software that you are aware of, which makes presentation? No, ma'am. Have you heard of Figma? Yeah, you have Canva, Prezi, Visme, बहुत Heard सारे about ऑनलाइन Canva, सॉफ्टवेयर्स. ma'am. Yes, these days Canva is one of the most trending software, जो कि many presenters को एक साथ बनाने में यूज करता है, हेल्प करता है. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक ऑनलाइन वर्जन भी आता है, दैट इज कॉल्ड गूगल स्लाइड्स. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो फीचर्स होता है वो स्लाइड्स में सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स होता है, थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर्स होता है उसमें. ठीक है. So presentation software is something which is basically used to develop the presentations. Okay. For different types of presentation purpose, maybe corporate presentations ho, yeah, it can be you can say communication based, it can be research based, yeah, any of the kind of presentation development. Okay. And it has different features, it has animations, it has write-ups, it has photographs. ओके. आप अपना स्लाइड्स बना सकते हो, स्लाइड क्रिएशन कर सकते हो. ठीक है. आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड बना सकते हो और उसमें लेआउटिंग कर सकते हो. तो लेट मी जस्ट गो थ्रू फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट features of PowerPoint which will help you to understand कि आप basically PowerPoint presentation में करते क्या हो. ठीक है. Again, like the Word, you have pre-designed themes as well. Pre-designed themes available है, आप उसको use करके आप अपना presentations बना सकते हो. But at the same time, it also has a feature which enables you to create your own template for the प्रेजेंटेशन. ठीक है. आप एक ही डिजाइन को बार बार कॉपी करके उसको स्लाइड मास्टर्स बना सकते हो, बैकग्राउंड पे वर्क कर सकते हो. ठीक है. एंड अगेन यू हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है वो सिमिलर होता है आपके वर्ड के जैसे, क्योंकि ये है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का, तो इनका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिमेन सेम फॉर ऑल दी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल. Okay, you have multimedia integration, you have transitions and animations, and you have different presentation modes. आप normal व्यू में शो कर सकते हो, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में शो कर सकते हो, रीडिंग व्यू में या प्रेजेंटर व्यू में. एंड यू कैन यूज मल्टीपल people work together. That is what is the latest feature of slide, Google slide and PowerPoint presentation is आपको कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हो. इट कैन बी डन यूजिंग शेयर्ड बेसिस. ठीक है. जैसे आपका कैनवा है, जैसे आपका फिग्मा है, उसी तरीके से इवन द पावर पॉइंट कैन हेल्प यू टू कोलैबोरेट एंड डू अ शेयर्ड वर्क. ठीक है. इंटरैक्टिव फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हो, एडवांस डिजाइनिंग टूल्स यूज कर सकते हो, प्रेजेंटर टूल्स यूज कर सकते हो. ठीक है. तो लेट अस गो टू PowerPoint. Look at it. So similarly as we did for Word, yes, Word में जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से हम एक नया फाइल ओपन करेंगे. यहाँ पर we have new, लेफ्ट कॉर्नर में when we, this is an existing file, I want to open a new file, so I'll go for new. ठीक है. Again here also based on my requirement, say I want to go for presentations, so I have online presentations available.
Say I want to select any one from it and I will create my own presentation on this. So this is how I am going to get the inbuilt templates in the presentation. Getting me? Yes. So if I do not want that, I'll go for new one again, and based on the my choice, based on my requirement, I will open a presentation file. All right. Now, say I am starting with a new presentation. Yes, all of you are able to see my presentation here. Yes, ma'am. ऑल राइट सो न्यू स्टार्ट करेंगे तो ये एग्जिस्टिंग है बट इफ आई वांट टू मेक अ न्यू वन आई कैन गो फॉर अ blank presentation. Okay, and from there I can create my own. Say I'm going for a blank presentation और यहाँ मुझे अपना एक फॉर्मेट बनाना है. So what I'm going to do, I am inserting the background from other drive or other part of the computer. Say I have some images which I want to put it as my format background में. So I'll have to select it from a place. And I want to make this as my layout. ठीक है, ये मेरे लेआउट में होगा और इसी के अकॉर्डिंगली आई विल make my presentations. All right, so you can click it now. You can work on this. आपको इसमें borders चाहिए तो आप borders पे work कर सकते हो. Now you want what kind of a look you want. ठीक है, आप उस तरीके से इसे एक टेम्पलेट बनाओगे. इसमें इसके साथ you will add a text box. So insert में जाओगे, insert में image में क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ से इमेजेस लेकर अपना इमेज डिराइव करके आप यहाँ डाल सकते हो. ठीक है, मैम तो आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. ओके सिंगल पेज आ रहा है मैम. ओके ओके अब आ रहा है. यस. ऑल राइट, तो जैसे आपने यहाँ पर आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट से आप पिक्चर्स इंपोर्ट करोगे. ठीक है, तो नाउ यू कैन हियर यू कैन पिक अप images from anywhere, either images or your formats. ठीक है, आपने कोई लेआउट बनाया, से आपने कोई काम किया, लेआउट बनाया, आपको उसी को आपको यहाँ आपके स्लाइड में वो फॉर्मेट चाहिए. ठीक है, तो आप उसे इंपोर्ट करोगे. आपका से आपने ये बनाया, आपको यही चीज आपके लेआउट में चाहिए तो आपने इसे सेलेक्ट किया, आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो. आपको पूरा चीज नहीं चाहिए बट आपको केवल ये पार्ट अपने लेआउट में चाहिए तो आपने उसे एडिट किया एंड आप इसे अपना फॉर्मेट में डाल सकते हो. Yes, you can work on this
कि आप इसे किस तरीके से डालना चाहते हो। इसका हाइट एंड वेट आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, इसका इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। से यू वांट जस्ट दिस पार्ट ऑफ इट इन योर प्रेजेंटेशन, सो दिस विल गो एज अ बैकग्राउंड, और इसको आप इसका करेक्शंस करना चाहते हो, इसके बैकग्राउंड से चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड खुद से डेवलप कर सकते हो। और इसको एज अ बैकग्राउंड बनाने के बाद आप इसमें अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, से यू हैव इंसर्टेड अ, इंसर्ट करके आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके यहाँ पर आप अपना ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन लेआउट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस, कैसे अपना प्रेजेंटेशन लेआउट बना सकते हैं? Yes, ma'am. नाउ यहाँ से आप न्यू स्लाइड करोगे, इसको आप बैकग्राउंड को कॉपी करोगे एंड न्यू स्लाइड में आप उसे पेस्ट कर दो क्या एट द बैक। एंड क्योंकि ये फ्रंट में पेस्ट हुआ है तो आप उसे सेंड टू बैक करोगे। तो इसका जो आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हो, से यू आर यूजिंग दिस फॉर इग्नू ऑनलाइन क्लासेस। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना जो भी, से यहाँ से आपने टेक्स्ट कॉपी किया, Ctrl+C आपने यहाँ से कॉपी किया, आप यहाँ आकर अपने फॉर्मेट में इसके अंदर Ctrl+V कर दो, तो वो सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नाउ here along with the fonts you can also insert the images, जैसे हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में किया था, ऑनलाइन वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने किया था, वैसे ही हम यहाँ पावर पॉइंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। ठीक है, से आई एम ठीक है, आपको इमेज इंसर्ट करना है, आप यहाँ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन यू कैन ऑल्सो एडिट दिस। यस, नाउ इसको आप एनिमेशंस भी इसमें डाल सकते हो। तो से यू हैव ट्रांजिशंस, आप इसे पुश करना चाहते हो इस तरीके से, यू वांट टू वाइप इट ऑफ, इस तरीके से यू कैन स्प्लिट इट ऑफ, इस तरीके से। सो व्हेन यू पुट द ट्रांजिशंस, आपका प्रेजेंटेशन का टेक्निक क्या होगा, किस फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करना चाहते हो, वो आप इसमें डालोगे। तो डिजाइनिंग आपने कर लिया, आपने ट्रांजिशंस अपना डाल लिया। नाउ यू वांट दिस टू बी एनिमेटेड, ये जो इमेज है ये सपोज यू वांट दिस टू फ्लाई इन। ठीक है, तो इस तरीके से वो अंदर आएगा। आप इसे फ्लोट कराना चाहते हो उसे, तो वो फ्लोट होगा। यू वांट दिस टू बी इन अ स्टार शेप। ठीक है, आप इसे फेड करना चाहते हो। तो इस तरीके से व्हेन यू
पुट द एनिमेशंस, आप इसे एनिमेशंस के साथ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनल इज द स्लाइड शो। जैसे आपने ये बनाया उसके बाद यू आर डूइंग अ स्लाइड शो। आपका जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये भी पावर पॉइंट में ही बना हुआ है। ये जैसे कि ये जो है ये पावर पॉइंट में बना हुआ है। व्हेन आई एम यूजिंग दिस कमांड कॉल्ड स्लाइड शो, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता है। एंड व्हेन जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर तो हमारा फर्स्ट स्लाइड आता है। इसमें मैंने कोई भी एनिमेशंस नहीं दिया है, इसीलिए ये प्लेन विजिबल है। बट व्हेन आई एम, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ this PPT itself, if I am adding animations to this, ठीक है, तो हम ये इसमें एनिमेशन डालते हैं से, तो इस तरीके का आया। इसमें हम अपना एनिमेशंस डालें, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई एम एडिंग। नाउ आई वांट टू हाइपरलिंक दिस विथ अ वर्ड फाइल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक इज समथिंग आई एम कनेक्टिंग दिस presentation with the document which is present. तो I have to use a term called hyperlink। यहाँ पर होगा, देखिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इस जिसके साथ आप लिंक करना चाहते हो उसमें आप राइट क्लिक कीजिएगा एंड वहां पर नीचे आता है हाइपरलिंक। जब हाइपरलिंक करोगे तो इस जहां से आपको पिक करना है, ठीक है, आप सपोज आई वांट टू पिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप जब प्रेजेंटेशन इसको स्लाइड शो कर रहे हो, देखो स्लाइड शो कर रहे हो जब आप इसे प्रेजेंटेबल मोड में कर रहे हो, ठीक है। व्हेन आई एम क्लिकिंग दिस, I will directly open a file which is present in this system। मैंने वहां हाइपरलिंक किया था एक डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो when I clicked into that, I am showing you the document which has been linked with that file। Understood? नाउ इसमें रिवर्स हाइपरलिंक भी होता है। आप जो फाइल ओपन करते हो उस फाइल को फिर आप उसमें वापस से रिवर्स करके भी आ सकते हो। से नाउ यहाँ हमने ये अप्लाई किया था एनिमेशंस। नाउ जब हम इसे एंटर करते हैं तो हमारा जो एनिमेशंस होता है वो उसी तरीके से विजिबल होता है, ठीक है। सो these kind of animations are introduced into a PowerPoint। ठीक है, सबको समझ में आया? Now finally, when you are culminating all of these and presenting in a slideshow, उसका स्लाइड शो का एक आइकन होता है नीचे, स्लाइड शो। you can present it as a slide show, you can present it as a reading view, ठीक है। रीडिंग व्यू में आप ऐसे प्रेजेंट करते हो जिसको सभी कोई पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स आप सपोज यू वांट दिस टू बी channeled in this way। ये रीडिंग व्यू है, इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। यू वांट टू शो दिस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट विंडोज, तो फिर आप इसको एज अ विंडो शो कर सकते हो। से आपने इस पे क्लिक किया, यू वांट टू शो इट 100%, हाँ, और आप इसे क्लिक करोगे फिर इसे आप 100% दिखाना चाहोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन शो इट एज विंडोज। आप यहां से यू आर क्लिकिंग ऑन दिस एंड यू वांट टू शो इट इन अ 100%। तो आप इंडिविजुअली एक एक स्लाइड को इस तरीके से स्लाइड सॉर्टर व्यू में प्रेजेंट कर सकते हो। एंड दिस इज योर नॉर्मल व्यू, ठीक है।
This is how we view all the PowerPoints. Now, along with this, we can also use the techniques of adding voice to it. ठीक है, या उसका टाइमिंग रखते हैं, कितना टाइम में होगा, उसको हम लोग ऑटोमेटिक प्रेजेंट करेंगे या मैनुअली प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वालिटीज भी हम इसमें डाल सकते हैं. वी कैन नो कि कितना देर में हम ये प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेट अप अ स्लाइड शो. ठीक है, यहाँ पर फुल स्क्रीन करना है, किस व्यू में करना है, ये पूरा का पूरा सेटिंग्स हम इसमें पहले से कर सकते हैं. नाउ से सपोज आई वांट टू शो दिस फ्रॉम नॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड बट आई वांट टू शो इट फ्रॉम द सेकंड स्लाइड. तो यहाँ पर हमें वो देना पड़ेगा कि हमें किस स्लाइड से प्रेजेंट करना है. तो वी कैन इवन कस्टम दैट स्लाइड शो कि किस किस पेज को मुझे शो करना है और किस किस पेजेस को मुझे हिडन रखना है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उस पे वर्क कर सकते हैं. यस, एनी डाउट इन दिस? All of you are through with the presentation making technique? Yes, ma'am. Ma'am, can you please repeat hyperlink? Okay. Say I want to hyperlink this document with something which is already having highly, relatable information on this. ठीक है, तो say I want to hyperlink this word IGNOU, ठीक है, with a document which is there or an online presentation. So what I will do is I will select the word that has to be hyperlinked. आप select करोगे using left click and dragging. ठीक है, IGNOU online को मैंने suppose select किया. I will put a right click. राइट क्लिक करोगे तो आप कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, उसके बाद यू हैव हाइपरलिंक. ठीक है, आप हाइपरलिंक में जाओगे एंड से यू हैव सम अदर प्रेजेंटेशन और एनीथिंग, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो. ये मेरे ड्राइव के किसी भी डॉक्यूमेंट से जो जिसके साथ मुझे इसको से हाइपरलिंक करना है उसको हम इसमें क्लिक किए. ठीक है, से आई एम डूइंग इट विथ अनदर प्रेजेंटेशन विच हैज इंफॉर्मेशन. तो वो मैंने क्लिक किया और इसका हाइपरलिंक सेट कर दिया. व्हेन आई एम शोइंग इट इन द स्लाइड शो, यस, आई वांट टू यूज दिस हाइपरलिंक. तो जहां मैंने हाइपरलिंक दिया है वो हाईलाइटेड हो जाएगा एंड आपको, आप जब उसे प्रेजेंट करोगे तब वो जो लिंक्ड चैप्टर है या लिंक्ड चैनल है वो वहां पर आएगा. नॉट ड्यूरिंग द नॉर्मल व्यू, ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंटेड. इट कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. बुक आप उसे रीडिंग व्यू में करो, ग्रिड व्यू में करो, या फिर आप उसे स्लाइड व्यू में करो, जैसे भी करो, बट ओनली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट देन ओनली दैट हाइपरलिंक विल बी विजिबल. ठीक है? Yes, ma'am. All right. Any confusions on this? We have No, one we are more good. to cover. Yes, just what you can do is right now take 5 minutes to
डिजाइन अ प्लान कि आपका स्लाइड कैसा होना चाहिए. से यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन दी न्यूज में आज आपका कौन सा चीज सबसे क्रिएटिव था न्यूज चैनल में, आप उसको सोचकर एक स्लाइड प्रेजेंट करना चाहते हो, एक स्लाइड डेवलप करना चाहते हो. ठीक है, तो आप उसे, आपका जो कल आपको मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, उसको सोचकर एक पेपर में एक A4 साइज सोचो उसे, और उस साइज में आप कैसे उसे प्रेजेंट करोगे, उसका स्लाइड व्यू एक पेपर में बनाकर दिखाओ मुझे, सो दैट आई कैन हेल्प यू. आपका ग्रुप है उसमें आप डालोगे एंड आई विल हेल्प यू आउट कि उसको आप अगर प्रेजेंटेशन में डेवलप करना चाहते हो तो फिर वो कैसे होगा कन्वर्ट. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? No, ma'am. से आज आपने कुछ भी देखा, सुबह से अभी तक कोई कुछ भी चीज देखा बाहर, घर में, कहीं भी, और आप उसके बारे में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, ठीक है, अपने फैकल्टी को या अपने टीचर को, तो आप उसका ऑन लेआउट, लेआउट मतलब आप कैसा चाहते हो कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा दिखे, उस तरीके का एक लेआउट अपने पेपर में बनाकर उसका फोटो खींचकर भेजो. हम उसको आपको स्लाइड में कैसे बनाना है वो बताएंगे अभी. ठीक है, Understood. समझ में नहीं आया? हेलो, आ गया मैम. am I audible? Yeah, so do that. We have 15 minutes of time. आप वो डेवलप करके अपने पेपर में बना के मुझे भेजो. I will help you out कि आप उस चीज को रियलाइज कैसे करोगे इन योर स्लाइड डेवलपमेंट. ओके,
Yes, how many of you are done? You can show me the development. Yes, I hope all of you have received the materials that I have given you all in the group. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, I have sent you some of the PDFs and PPTs, okay, for your reference. आप वो पढ़ लेना और कल आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके लिए भी हम आपको जो टेस्ट पेपर है वो भेज दिए हैं.
आप वो देख लीजिए। सबसे पहला जो है प्रैक्टिकल, ठीक है, वो प्रैक्टिकल आपको कल कंप्लीट करना है ऑन क्लास और प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप पहले से वो पढ़ाई कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताया है, और कल इसमें इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोच लीजिए, क्योंकि कल आपको ये करके हमें बताना है ड्यूरिंग द 3 hours 2 hours जहां हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई विल डू अ मार्किंग ऑन इट एंड दैट मार्क्स विल बी सेंट अहेड, ठीक है। आप जिस तरीके से अभी आप अपना आंसर्स जो राइटअप्स है वो आप ग्रुप में भेज रहे हो, उसी तरीके से आप इसे फिलअप कर लो और आप मुझे भेज दो पीडीएफ बनाकर, ठीक है। ओके। मैम मैंने एक पीपीटी बनाकर भेजा है, जस्ट चेक वंस, ग्रुप में भेजा है। आई या डोंट हैव अ पेपर, तो पीपीटी बना दिया। ओके, ऑलराइट। So have you picked a template which was already there? Yes, ma'am. All right. I hope you have understood how to create your own template, or you may be aware of Yes, it, yes. maybe from the. All right. All right. Good work, Joseph. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. I do not know about you since you were not there during the day we introduced ourselves. Yes. So can I get a small introduction? Yeah, sure, ma'am. My name is Joseph Francis Williams, and I'm basically from Kolkata, West Bengal. Okay. Which place in Kolkata? I stay near Picnic Garden. All right. I did my bachelor's from Kolkata, Salt Lake, Sector 3. Oh, great. My workplace Yes. is nearby Salt Lake only. Okay. So where are you working? I am working for Puma, ma'am, as a manager. All right. So you are already in a brand. Why do you need to take this certificate program then? Because I'm looking forward for a visual merchandiser post, so that's why I'm doing this course. Later on, I'll be continuing with more studies as well, so it will help me out. All right. Good. All the best. You can go ahead with it. Yes. Thank you so much, ma'am. I'll be visiting Kolkata very soon with all my Sure. students. Please come Yeah. to our store. So Please come to our store. where is it placed? It's in Money Square Mall. Money Square Mall. All right. Yeah, I'll try to, because we have a 4 days visit to Kolkata from November 11th to November 14th. We will be visiting to the industries like Rupa, Kariwala Exports, and then Indiloom, and then 1 day of market sourcing for the students. So 4 days of visit. Okay, ma'am. We'll see you then. Yeah, sure. I'll try seeing you in the Money Square Mall, right? Yes, ma'am. All right. All right. Thank you for your introduction. Yes. What about others? Have you all completed? I received the work from Vineet. Shall I share your presentation, Williams, so that it becomes Yes, ma'am. Sure. an You don't have example? to ask me. All Just right. show it, ma'am. No problem. Yeah.
Yeah, hi everyone. Can you please see my screen? Yes. I hope I'm audible to everyone. Yes. Yeah. So this is one of the PowerPoint presentation that Joseph has created right now, and he has sent it across to us. So I'm showing this for your reference. So based on the theme, how you work on it. Okay. Say I asked about a news. So when you are highlighting something, yes, you need to uh, uh, just a sec. Let me just take this call. Yeah, hello. हाँ प्रकाश ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଠିକ ଅଛି hello yeah sorry for the interruption guys so based on the theme upon what kind of a theme you want to create the presentation you pick the images as well and you need to apply all the knowledges that you have received earlier in the earlier classes as I was speaking about the composition when you are developing anything which should have a combination of aesthetics as well as art into it you will have to look for maximum number of elements of design to be present there so when you are looking into this you can see how the focus has been created by giving a white space above your text all right so this is how you need to implement your design elements as well even in your softwares or your presentation techniques so you can see the second slide speaks about the agenda what are the things that we are going to look into so he has meant to speak about sports the money control news and this is why he has even used a icon similar to what he wants to be spread out so he wants this to be announced to everybody so you can see the icon that he has used is about announcement all right so he has used a already existing template and he has created the different presentation agendas that needs to be spoken yes all of you please need to understand that this is not a documentation presentation means presentation where you cannot use thousands of words to create it in the form of a document what you need to understand is this is a presentation software where you need to highlight or you can create keywords present it in the slide in such a way that you are getting informations about it or you are speaking about the informations in relation to the keywords that you are using all right so you don't have to put it like word में आप जैसे डेटा डालते हो वैसे presentations में बहुत सारे डेटा नहीं डाला जाता है only when there is a necessity you put in tables okay and tabular format में आप अपना informations को present करते हो but not like a book all right say here he has used keywords along with the text as well so he wants to speak about the footballer I do not know his name yes so this is how you go ahead with the presentation skills and within just few minutes this is how it can be created now when you want to go for your own individual style you can create your own techniques all right and you can present it in the form of a template all right I hope I have been able to make you all understand about the two softwares that we have done Microsoft Word and Microsoft PowerPoint yes Yes. विनीत आपको समझ में आया डू यू फील इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर boutique to present your Yes. work somewhere आप जब अपने when you are going to other places to market your work तो आप इस तरीके से present कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल मैम
So, Yes, do you feel this is helpful? yes, ma'am. बिल्कुल. Yes, आप अपने brochures बना सकते हो, आप अपने catalogs बना सकते हो, flyers बना सकते हो, है ना? Yes, ma'am. What about कुसुम? कुसुम से भी हम नहीं मिले हैं, आई थिंक. Kanak, what about you? All right, nobody is interested to talk to me, it seems. Yes? Can you all please switch on your cameras so that I can have a look at you guys? Juhi is back at home or you are still outside? मैम मेरा एक क्वेश्चन था ये जब हाँ, हमने बोलिए. फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस के लिए सेंटर चूज किया था बट ये ऑनलाइन क्लासेस. It is again an administrative question. I'm not the right person to answer this question. ठीक है. वो आपके coordinators जो हैं वो बताएंगे. I am not the right person to speak on it. और मैंने बुक के लिए भी किया था मतलब हार्ड कॉपी के लिए. अच्छा, आपके पास हम मटेरियल सॉफ्ट कॉपी आपको भेज सकते हैं which I have. तो ठीक है, सॉफ्ट so that कॉपी you तो can ऑलरेडी struggle. मैम उस पे उसके वेबसाइट पे हैं, मैंने डाउनलोड भी All किए हैं. I am here just to teach you the subjects that has been allotted to you. ठीक है. ओके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, यू नो कोऑर्डिनेटिंग इश्यूज है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा. ठीक है. So ओके मैम. sorry, I'm not being able to answer the question you wanted me to answer. ओके Okay. All right, then we will call it for the day. Yes. And if you have any doubt, you can raise the doubts related to whatever I am teaching you in the group so that I can reply you back and maybe I'll be able to help you out with it. Only related to the contents that you are learning. All right. All right, ma'am. All right, guys. Thank you so much. Yes, somebody has written Thank you. something, it seems. All right. Thank you.